students, how are you? I am fine. Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay, so in this lecture we will discuss the Bayes theorem from the probability chapter. Okay, and I think only one lecture was given from this Bayes theorem, and we had solved different questions from the Bayes theorem also. Okay, so today we are going to solve a very मतलब एक सीरीज होगा क्वेश्चंस का, बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो ऑल आर द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो. ओके, फॉर द बोर्ड स्टैंडर्ड एग्जाम्स. ओके, सो in the last lecture we had discussed the basic concepts and the properties and the question pattern and some basic questions also from this Bayes theorem chapter, and I think you have got the enough idea that how can you solve these Bayes theorem questions and how can you determine that this question is for the Bayes theorem questions. Okay, so after saying this particular type of questions, you will come to know that no, this question will have to be solved by the Bayes theorem, by the Bayes theorem. Okay, and this Bayes theorem is completely dependent on this conditional probability. Okay, and that means all of these probability structures are related to the conditional probability. That you can see everywhere that these conditional probability concepts are being used. Okay, in the law of total probability, this Bayes theorem, everywhere this conditional probability, it is based on this conditional probability. Okay, if you don't have the clear concept regarding this conditional probability, then I think you will not be able to solve this Bayes theorem and this law of total probability questions. At first you need to know what is conditional probability. And another important announcement that I have started a very new channel where the different competitive exams mathematics aptitudes will be discussed and solved also, just like your CTET, state TET, and this KBS, PRT, TGT, and this PGT, and this NVS, this NTPC, and after different railway exam, LIC exam, different competitive exams, just aptitudes, one paper is aptitude is to come. Okay, just we will solve this aptitudes for these different types of competitive exams. Okay, so if you have any contact, those who are giving this type of competitive exam, just tell them about my channel. My channel name is Mathematics Icon 2. Mathematics Icon 2. Okay, 2. Mathematics Icon 1 ये है, Mathematics Icon 2. Okay, and just I think yesterday, okay, it is started. Only one video, that means one introductory speech was given yesterday, and the videos will be uploaded in the next Sunday. Okay, so every week on this Sunday the classes will be continued for this different competitive exams. Okay, so just inform all of the actually this aspirants, this CTET and SR.ABHIK aspirants, and maybe your big brother and big sisters are giving this type of exams as well. Just inform them that no, just join this channel. I think you will get this enough confidence in this mathematics subject as well. Okay, now today's first question is, just write the first question. Okay, a card from a deck of 52 cards. A card from a deck of 52 cards. A card from a deck of 52 cards is lost. A card from a deck of 52 cards is lost. Okay, is lost. From the remaining cards of the pack, from the remaining cards two cards are drawn. I think two cards are drawn.
2 cards are drawn and are found to be hearts and are found to be hearts. Okay, found to be hearts. Find the probability of the missing card. Find the probability that the missing card is heart. Okay. Here 52 cards, deck of 52 cards is there. One card is lost, but which one we don't know. It may be spade card, it may be heart, it may be diamond, it may be clubs. Okay, so we don't know which card exactly, which type of card is lost. So here 4 possibilities is coming. I think E1, spade card is lost. E2, heart card is lost. E3, diamond card is lost. E4, क्लब्स कार्ड इज लॉस्ट. पहले तो 52 कार्ड में से एक कार्ड तो गायब हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 कार्ड ड्रॉ किया है. ठीक है ना. 51 कार्ड में से, याद रखना 51 कार्ड में से अभी एक कार्ड तो लॉस्ट हो गया है. अब फेवरेबल इवेंट पे जाओगे तो एक कार्ड कम आपका रहेगा ना, अंदर 51 कार्ड्स रहेगा. ठीक है ना. अच्छा, अब आओ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन. 2 कार्ड आपने ड्रॉ किया. वेरी गुड. एंड दे आर फाउंड टू बी हार्ट्स. दैट मीन्स अल्टीमेटली 2 हार्ट कार्ड्स आर ड्रॉन. बस हो गया. 2 हार्ट कार्ड्स आर ड्रॉन. 2 हार्ट कार्ड आपने ड्रॉ किया. ये मतलब ये दैट मीन्स ये गिवन है. ठीक है. नाउ यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the card which is lost, that is the hard card. That was the hard card. Hard card है, वो आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है. सो दैट मीन्स यहां पर E1, E2, E3, E4 यहां पर आप कर सकते हैं. देखो E1 इक्वल्स टू spade card is lost. E2 equals to hard card is lost. Hard card is lost. पहले तो कार्ड गायब हो गया, फिर उसके बाद ड्रॉ करना शुरू हो गया. ठीक है ना. E3 equals to डायमंड. ये हार्ट है और ये स्पेड है. डायमंड. ओके. कार्ड इज लॉस्ट. एक कार्ड. ठीक है ना. E4 एक ही तो कार्ड लॉस्ट हुआ है ना. एक ही कार्ड. सो क्लब्स कार्ड इज लॉस्ट. एक कार्ड लॉस्ट हुआ है. आउट ऑफ हर एक टाइप का कार्ड कितना होता है? हर एक टाइप का कार्ड कितना होता है? 13. ठीक है. तो यहां पर आप दैट इज P ऑफ E1 क्या होगा? एक हार्ड कार्ड लॉस्ट हो गया. हार्ड कार्ड टोटल कितना है? 13. टोटल 52. तो हर एक शायद यहां पर P ऑफ E2 ये भी 13/52 ही होगा. ये भी सेम. ये P ऑफ E2 है. ये P ऑफ E3. P ऑफ E1 ये भी 13/52, क्योंकि हर एक टाइप का कार्ड तो यहां पर 13 ही है कि नहीं, और टोटल 52 है. तो उसका प्रोबेबिलिटी तो यही होगा. एक कार्ड अगर गुम हो गया है तो आपको तो फेवरेबल इवेंट में, जैसे हार्ड कार्ड, स्पेड कार्ड एक लॉस्ट, स्पेड कार्ड इज लॉस्ट. दैट मीन्स फेवरेबल इवेंट में स्पेड कार्ड आएगा. टोटल में क्या आएगा?
मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आएगा नीचे है, दैट मींस 52 कार्ड्स और ऊपर फेवरेबल, दैट मींस नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स। तो हर एक टाइप का कार्ड तो 13 करके ही है, 13/52, 13/52, 13/52, 13/52, दैट मींस 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। एक कार्ड लॉस्ट हो गया ना। नाउ ए इवेंट, व्हाट इज ए इवेंट? A equals to two hard cards are drawn. Very good. Two hard cards are drawn. It is, I think I can see this. From the remaining cards, two cards are drawn and are found to be hearts. That means ultimately, if you combine these two sentences, then it will become that two hard cards are drawn. ठीक है, हर कार्ड आपने ड्रॉ किया है। नाउ अभी सो P ऑफ A/E1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है E1 मतलब क्या है? स्पेड कार्ड इज लॉस्ट। और आपने कितना कार्ड ड्रॉ किया है? 2 हार्ड कार्ड ड्रॉ किया है कि नहीं? अच्छा, सो यहां पर 2 हार्ड कार्ड आपने ड्रॉ किया है, फेवरेबल में ये है, ठीक है। और E1 दैट मींस E1 इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड। E1 इवेंट क्या है? ऑलरेडी ऑकर्ड। तो E1 इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड हो गया, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी 1 स्पेड कार्ड इज लॉस्ट। ओके, तो टोटल अगर यहां पर देखो स्पेड कार्ड एक गुम हो गया है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना बच गया आपके पास? 51। आपको कितना कार्ड चूज करना है? 2 कार्ड, 51C2, ठीक है। यहां पर भी आप 31C1, 51C1, 52C1 लिख सकते हैं। तो आंसर तो 13 और 52 होगा अल्टीमेटली, क्योंकि एक कार्ड के लिए कॉम्बिनेशन जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 2 कार्ड से ही शुरू होता है, 2 चीज सिलेक्ट करना है, तब जाके कॉम्बिनेशन ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो A/E1, तो आपने तो एक स्पेड कार्ड तो आपने गुम कर ही दिया, ठीक है ना। तो टोटल में से तो यहां पर एक कम हो जाएगा, 51C2। फेवरेबल में क्या करना है आपको? फेवरेबल में ए क्या है? फेवरेबल में ए क्या है? 2 हार्ड कार्ड्स आर ड्रॉन। यहां पर E1 मतलब गुम हो गया था कौन सा कार्ड? स्पेड कार्ड। आपको ड्रॉ करना है कौन सा कार्ड? हार्ड कार्ड, ठीक है ना। तो हार्ड कार्ड कितना है? 13C2। सिमिलरली P ऑफ A/E2, ये क्या होगा? अब E2 दैट मींस ये कंडीशनल प्रॉपर्टी कांसेप्ट है। E2 ऑलरेडी हैपेंड, मतलब E2 क्या है? हार्ड कार्ड इज लॉस्ट। ये तो 51C2 ये होगा। टोटल तो कोई भी कार्ड गुम हो जाए, 51 कार्ड ही तो लेफ्ट रहेगा, ठीक है। नाउ हार्ड कार्ड गुम हो गया है, वेरी गुड। आपको ड्रॉ भी करना है कौन सा कार्ड? हार्ड कार्ड ही ड्रॉ करना है। तो यहां पर देखो डेक में टोटल नंबर ऑफ हार्ड कार्ड्स, हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 हार्ड कार्ड इज ऑलरेडी लेफ्ट, ओके, दे आर ऑलरेडी स्टोलन, ओके। सो नाउ हाउ मेनी हार्ड कार्ड्स आर लेफ्ट इन द डेक ऑफ 52 कार्ड्स? 12, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हार्ड कार्ड ही तो आपको फेवरेबल में क्या है? 2 हार्ड कार्ड इज ड्रॉन, आर ड्रॉन, so that means you need to draw the hard cards only, okay, or this 1 hard card is lost, गुम भी हो गया हार्ड कार्ड, इसलिए टोटल भी 1 कम हो जाएगा और फेवरेबल भी 1 कम हो जाएगा, that means 12C2, right? P/E3 51C2 तो सेम रहेगा। ए मतलब यहां पर क्या है? 2 हार्ड कार्ड। यहां पर तो E3 गुम हो गया कौन सा कार्ड? डायमंड कार्ड गुम हुआ है, तो हार्ड कार्ड तो यहां पर इफेक्ट नहीं होगा। हार्ड कार्ड तो 13C2। P ऑफ A/E4, यहां पर भी 13C2 by 51C2 हो गया, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन क्या है देखो कि जो कार्ड मिस हो गया है, वो कार्ड ओरिजिनली कौन सा कार्ड था? हार्ड कार्ड था, हार्ड कार्ड
था। दैट मीन्स आपको निकालना क्या है, हार्ड कार्ड का नाम क्या दिया था, E2 दिया था, है कि नहीं। सो मुझे निकालना है E2 by A, है कि नहीं। सो P of E2 by A, इसका आंसर मुझे निकालना है। E2 मतलब हार्ड कार्ड इज लॉस्ट, A मतलब 2 हार्ड कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड व्हिच इज लॉस्ट फ्रॉम द हार्ड कार्ड्स कलेक्शन, एंड इट इज गिवन दैट these 2 hard cards are drawn from the deck of 51 cards. Okay, so E2 by A आपको निकालना है। क्वेश्चन में देखो कि जो कार्ड आपका लॉस्ट हो गया वो हार्ड कार्ड ही था, ठीक है। तब आप प्रोबेबिलिटी निकाली, तो हार्ड कार्ड था, दैट मींस E2 ऊपर रहेगा। हार्ड कार्ड का नाम मैंने E2 दिया है, E2 इवेंट, और A तो मतलब जो 2 कार्ड आपने ड्रॉ किया। सो E2 by A फॉर्मूला P of E2 P of A by E2 बाय, बस यहां पर तो P of E1 P of A by E1 प्लस P of E2, वही टोटल तो आपको लिखना है। यहां पर नीचे तो फेवरेबल पार्ट होगा, और यहां पर तो सब आपको लिखना है टोटल पूरा, सब इवेंट्स का लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की तरह। E3 P of A by E3 प्लस P of E4 P of A by E4, ऐसे। Now you can use all the values, ठीक है। P of E2 मतलब 1 by 4 into A by E2 12C2 by 51C2, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 by 4 into 13C2 by 51C2 plus 1 by 4 12C2 by 51C2 plus 1 by 4 13C2 by 51C2 plus 1 by 4 13C2 by 51C2, ठीक है। तो नीचे से 51C2 कैंसिल आता है, 1 by 4 भी कैंसिल आता है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। 1 by 4 इधर है, और ये हर एक टर्म से एक 1 by 4 कॉमन आएगा, 51C2 भी कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी रहेगा देखो ये सिर्फ 12C2 by 13C2 plus 12C2 plus 13C2 plus 13C2, तो उसका भी कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा 11 by 50, 11 by 50, that will be the answer. Oh, I have done this calculation enough. Okay, so you will solve it. Now okay, now next question. Suppose a girl, next question जाओ। Suppose a girl given 3 identical boxes, 1 2 3, given 3 identical boxes 1 2 and 3, okay। In box 1 both coins are gold coins. In box 1 both coins are gold coins, ठीक है। In bag 2 both are silver coins. In bag 2 both are silver coins. In bag 3 there is 1 gold 1 silver. In bag 3
1 gold and 1 gold, 1 silver. ठीक है? A person chooses a box at random. A person choose a bag. पहले उसने एक बैग चूज किया. यहां पर बैग या बॉक्स, बॉक्स होगा. A box. Choose a box and choose a box. पहले उसने बॉक्स चूज किया and takes out a coin and takes out a coin. एक कॉइन उसको वहां से निकाल लिया. अब वही फाइंड द प्रोबेबिलिटी. A person if the coin is of gold, is the coin, if the coin is gold, then what is the probability that the other coin in the box is also of gold? Then find the probability. Then find the probability that the other coin is gold coin. मतलब you have 3 identical boxes, that means 3 same box. Okay, so these 3 boxes contains different types of coins. Okay, in box 1 2 gold coins are there. In box 2 2 silver coins are there, and in box 3 1 gold and 1 silver coin. Okay, now a person choose a box. At first you need to choose a box, so that means that will be the main event. E1 first box is chosen, E2 second box is chosen. So after choosing this box, you need to draw 1 coin from one of the bag. We don't know exactly from which bag you are going to draw here. We don't know till now. Now you need to draw 1 coin, and that should be the gold coin. That should be the gold coin. That means A equals to, यहां पर क्या होगा, 1 gold coin is drawn. A event क्या होगा, 1 gold coin is drawn. Okay, 1 gold coin is drawn. यहां तक आते हैं. ठीक है, here E1 equals to first box is chosen. आपने पहला बॉक्स चूज किया फर्स्ट. E2 second box is chosen. E3 third box is chosen. Okay, so out of these 3 box, if you choose 1 box, then I think the probability of choosing 1 box at a time 1 by 3, P of E2 1 by 3, and P of E3 equals to 1 by 3. Right? So these are the probabilities of choosing a box first. Okay, 3 बॉक्स है, उसमें से एक बॉक्स आपको चूज करना है. क्वेश्चन में बोला क्या, आपको यू नीड टू चूज द बॉक्स फर्स्ट. ठीक है, ए पर्सन चूज ए बॉक्स, तो पहले बॉक्स चूज करना है आपको, फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर से आपको जो भी उठाना है. ठीक है, अब A इक्वल्स टू
A equals to a gold coin is drawn. ठीक है, a gold coin is drawn. Now you need to find the probability that the other coin also will be gold. This other coin also will be the gold coin. Okay, so now, so here P of A by E1, this is your first A by E1. What is your E1 here? First bag is chosen. फर्स्ट बैग आपने चूज किया. ए इवेंट क्या है? आपको गोल्ड कॉइन ड्रॉ करना है. ठीक है, गोल्ड, एक गोल्ड कॉइन आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, अच्छा. तो यहां पर बैग में टोटल बॉल कितना है? 2 बॉल है. और वो दोनों कौन सा बॉल है? गोल्ड बॉल नहीं, सॉरी, कॉइन. कितना गोल्ड कॉइन है? 2 गोल्ड कॉइन है. ठीक है, आपको चूज भी करना है क्या? गोल्ड कॉइन. तो आपके पास ऑप्शन क्या है? फेवरेबल इवेंट में भी गोल्ड कॉइन, टोटल में भी गोल्ड कॉइन है कि नहीं? सो देखो तो यहां पर नीचे टोटल बॉल में तो 2 आएगा. फेवरेबल कॉइन में कितना आएगा? फेवरेबल इवेंट क्या है यहां पर? गोल्ड कॉइन. गोल्ड कॉइन बैग में कितना है? 2. तो 2/2 नहीं होगा क्या? तो आंसर इज 1 है कि नहीं? फेवरेबल इवेंट और टोटल तो यहां पर मैच हो गया है ही बैग में टोटल. ये आपका ये गोल्ड कॉइन, 2 गोल्ड कॉइन. आपको चूज भी करना है गोल्ड कॉइन, तो आपके पास ऑप्शन भी, फेवरेबल में ऑप्शंस होता है, जितना भी आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं वो सब फेवरेबल में आएगा. तो यहाँ पर 2 फेवरेबल है, 2 गोल्ड कॉइन है ना, तो फेवरेबल इवेंट में 2 गोल्ड कॉइन ही तो आएगा. तो 2/2 टोटल बॉल और फेवरेबल इवेंट दोनों सेम हो गया, तो 1. फिर P ऑफ A बाई E2, मतलब यहां पर सेकंड बैग आप चूज कर रहे हैं. इन द सेकंड बैग चूज कर रहे हैं. फिर आपको बॉल कौन सा, दैट मीन्स कॉइन आपको कौन सा ड्रॉ करना है? गोल्ड कॉइन ड्रॉ करना है. जस्ट रिमेंबर दिस. सो इफ यू वांट टू ड्रॉ a gold coin from one bag, then that bag or box, whatever it is, this box must contain the gold coin first. If this box contains the gold coin, then you can draw a gold coin from this box. But here E2 is means what? Second bag, second box is chosen. But in the second box, you can see the question. In the second box, 2 silver coins are there. No gold coins are there. So if you have no gold coins in this box, then how can you draw the gold coin from this box? Is it possible? Okay, you can't choose from the outside. Okay, at first you need to choose the box, and after that from this box you need to choose 1 gold coin. That is the probability. Okay, so if you have no gold coins in this box, then how can you choose this 1 gold coin from this box? Is it possible? It is not possible. So if it is not possible, that means what? Impossible events is coming. So impossible event probability is what? 0. आपके पास तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं सेकंड बैग में, तो गोल्ड कॉइन आप कहां से चूज करेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट. A by E3. In A by E3 means what? This third box is chosen. So in the third box, 1 gold coin or 1 silver coin is there. Okay, so that means total ball में तो 2 आएगा. Very good. बॉल तो आपका मतलब टोटल इवेंट पे तो आपका 2 आएगा. दैट मीन्स 2 कॉइन है, 1 सिल्वर 1 गोल्ड. आपको चूज क्या करना है? ए मतलब गोल्ड कॉइन चूज करना है. कितना? 1 गोल्ड कॉइन. आपको कितना गोल्ड कॉइन चूज करना है? 1 गोल्ड कॉइन चूज करना है. ठीक है, तो बैग में कितना गोल्ड कॉइन है? 1 गोल्ड कॉइन है, तो फेवरेबल में कितना गोल्ड कॉइन आएगा? 1 ही आएगा. सो दैट मीन्स आपका मिल गया. देखो, है कि? नाउ यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. You need to find the probability of the other coin must be a gold coin. ठीक है, so यहां पर आपको निकालना क्या है कि find the probability that the other coin is gold coin. That means एक कॉइन तो गोल्ड कॉइन तो आपने ड्रॉ कर ही लिया. अब बैग में जो दूसरा कॉइन जो बचा है वो कॉइन भी गोल्ड का ही होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है. अब दैट मीन्स एक गोल्ड कॉइन आपने ड्रॉ कर लिया है कि नहीं? अब बैग में जो दूसरा कॉइन बाकी है वो भी गोल्ड का होना चाहिए. दैट मीन्स दोनों ही कॉइन गोल्ड का था.
एक गोल्ड कॉइन तो आपने ड्रॉ कर लिया, बाकी जो गोल्ड कॉइन, बाकी जो एक कॉइन बचा है वो भी गोल्ड का होना चाहिए। दैट मीन्स बॉक्स में कितना गोल्ड कॉइन था? 2 गोल्ड कॉइन था। अब कौन से बॉक्स में गोल्ड कॉइन 2 था? फर्स्ट बॉक्स में, दैट मीन्स E1। दैट मीन्स आपको निकालना क्या है? सो P of E1 by A। ठीक है, नाउ use this formula and get the answer. P of E1, P of A by E1 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3. ठीक है, now put all the values, you will get the final answer. 1 by 3 A by E1 मतलब 1 divided by 1 by 3 into 1 plus 1 by 3 into 0 plus 1 by 3 into 1 by 2. So that means 1 by 3 or either 1 by 3 plus 1 by 6. So just find the answer. So we'll get the final answer. Okay. Very interesting questions. Okay. So 3 6 LCM is 6 ही होगा, ये 1 by 3 और ये 6 2 plus 1. That means 1 by 3 3 by 6 2. So that means answer is 2 by 3. Answer is 2 by 3. So it is the final answer. Okay. So just these are all very important questions. Okay. Now next, suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair. Okay. कुछ कलेक्शन लिया गया है मैन और वुमेन का, है? So some men and some women have the gray hair. Okay, so just you need to write the question first. Okay, right. Suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair. Have gray hair. Okay. A gray-haired person is selected at random. A gray-haired person selected at random. एक ग्रे हेयर पर्सन को सिलेक्ट किया गया. वी डोंट नो वेदर इज मैन और वुमन, वी डोंट नो. ओके, ऐसे ही कुछ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? बीइंग मेल, दैट मींस whoever is chosen, gray haired person, whoever is chosen, that should be male. Okay, you need to find the probability of this thing. So what is the probability of this person being male? What is the probability that the gray-haired person is male? Assuming that there are equal number of males and females. Assuming that there are equal number of male and female.
Okay, now so here at first you have some male and female collections, okay, and some males are gray haired and some females, they are also gray haired, okay. Then after that one person is chosen and most importantly, so that means जो जिसको आपने चूज किया है he is also gray haired person and is a man or women, we don't know, okay. Just we need to find the probability that whoever the gray haired person is chosen, that should be a male person, okay. And we have to assume that the total number of males and total number of females are equal, okay. So that means the probability of choosing a male will be half and probability of choosing a female is half, क्योंकि दोनों का तो सेम है ना, इक्वल है कि नहीं. सो आधा आधा होगा, मेल चूज करना फीमेल चूज करना तो आधा आधा होगा, है कि नहीं. सो लिखो हियर एट फर्स्ट तो आपको मेल और फीमेल चूज करना है. सो E1 equals to male is chosen, E2 equals to female is chosen. So P of E1 equals to half, P of E2 equals to half. A equals to क्या होगा, a gray haired person is chosen. हम लोग नहीं जानते वो मेल है फीमेल है, कुछ नहीं जानते हम लोग. अब ये निकालेंगे P of A by E1, मतलब है आपने मेल चूज किया है, E1 मतलब क्या है, मेल आपने चूज किया है, उसके ऊपर ए इवेंट क्या है, ए इवेंट है आप ग्रे हेयर्ड पर्सन चूज कर रहे हैं. दैट मीन्स मेल चूज कर रहे हैं, मेल उसके ऊपर ग्रे हेयर्ड होना चाहिए. क्वेश्चन में हाउ मेनी ग्रे हेयर्ड मेल पर्सन आर देयर, इट इज गिवन आई थिंक 5%. दैट मीन्स 5/100. मैंने बोला था परसेंटेज इज ए प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ, ओके. उसको प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी परसेंटेज है ना, प्रोबेबिलिटी है ये. सो अगेन P of A by E2, दैट मीन्स व्हाट, E2 मतलब फीमेल चूज करना है, E2 मतलब फीमेल चूज कर रहे हैं, उसके ऊपर ग्रे हेयर्ड होना चाहिए. तो हाउ मेनी ग्रे हेयर्ड फीमेल पर्सन आर देयर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, 0.25%. 0.25%, that means 0.25 by 100. So that means 25 by 100, that means 10,000. 25 by 10,000. It is your P of A by E2. Now, you need to find the probability that the person who is chosen, okay, it is grey haired person is chosen and he is actually a male. ठीक है, मेल कौन सा इवेंट, E1 by A निकालना है आपको. सो P of E1 by A निकालो. सो P of E1 by A, ठीक है. P of E1 by A बस. सो P of E1, P of A by E1 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. So just put the values. Half into A by E1, 1 by 20 काटोगे तो ये 1 by 20 होगा आई थिंक, और यहां पर ये 1 by 400 होगा शायद, ठीक है. तो दैट मीन्स नीचे क्या होगा, P of E1, that means half into 1 by 20 plus half into 1 by 400. 0.25% है ना, तो 1 by 400. So just find the answer. So क्या होगा, 1 by 40 plus 1 by 40 plus 1 by 800. तो
कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके 20/21 दैट शुड बी द आंसर. 20/21 कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके 20/21 आंसर आना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. A bag contains 4 balls. A bag contains A bag contains 4 balls. That means यहां पर जो फेवरेबल इवेंट है वो कुछ सब इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. तो आपको ये सब इवेंट्स क्या क्या चूज करना है, दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली. ओके, सो जस्ट राइट दिस क्वेश्चन. ए बैग कंटेन्स 4 balls. A bag contains 4 balls. एक बैग में 4 बॉल है. देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि कंटेनर 2-3 होना चाहिए. ठीक है ना. तो यहां पर कुछ ना कुछ तो एक बैग दिया है, तो यहां पर कुछ ना कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में ऑब्वियसली, जो आपको E1, E2, E3 ये सब इवेंट्स जो है वो देगा. ठीक है, देख लीजिए. 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेस. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random without replacement and they are found to be white. 2 balls are drawn at random and they are found to be white. Okay, found to be white. What is the probability that all the balls are white? Find the probability that all the balls are white. देखो घुमा फिरा के बात बोला गया यहाँ पर. ठीक है. एंड ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है. ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए. A bag contains 4 balls. कौन सा कलर का? We don't know. And here it is the doubt actually. Okay. And from these 4 balls, which one is white, which one is non-white, which one is other colored ball, we don't know. Okay. So we can assume the events here. ठीक है. एक ही बैग में हम लोग इवेंट्स यहां पर चूज कर सकते हैं. If the color of the balls were given, then you couldn't get the E1, E2, E3 events for this bias theorem. Here you have this possibility and you have this plus point, you have this advantage that the color of the balls are not given. So these events E1, E2, E3, E4, that should be considered as the color of the balls. Again, देखो, a bag contains 4 balls. 4 बॉल है, कलर हम लोग नहीं जानते. 2 balls are drawn at random. Very good. You will have to draw 2 balls at random. And they are found to be white. अब कलर कहां से आ गए रे भाई? मैंने बोला था कि 4 balls कलर नहीं जानते हम लोग. We don't know the colors. But now in this last part of this question, that you need to draw 2 balls. Very good. 2 balls आपको ड्रॉ करना है. But they are white in color. So कलर कहां से आ गया फिर से यहां पर? वहां पर ही देखो एक लिंक पैदा हो गया है. ओ दैट मींस ये 4 बॉल में व्हाइट कलर का बॉल कुछ है और व्हाइट कलर के अलावा कुछ बॉल्स हैं. ठीक है, देखते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर व्हाइट. ओके, इसको छोड़ो. प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है उसको छोड़ो. फर्स्ट क्वेश्चन इज what is your E1 and E2, E3 these events. Okay, and what is your A event here? So E1 that means यहां पर आपने 2 balls draw किया है and that should be white because that means what? In this bag 4 balls are there. So out of these 4 balls, some balls are white colored balls and some balls are non-white colored balls.
ओके, वी डोंट नो द कलर, एग्जैक्ट कलर, बट वो व्हाइट नहीं है, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज पैदा हो गए यहां पर। लेट E1 इक्वल्स टू, लेट E1 इक्वल्स टू चूजिंग व्हाइट कलर्ड बॉल। अच्छा, यहां पर देखो E1 हम लोग, अच्छा यहां पर दो बॉल आपको ड्रॉ करना है, दो बॉल आपको ड्रॉ करना है, एंड दे आर फाउंड टू बी व्हाइट। मतलब दो बॉल आपको ड्रॉ करना है और वो दोनों बॉल व्हाइट है। ठीक है, तो दैट मीन्स कम से कम बैग में तो दो व्हाइट बॉल तो होना चाहिए, दो व्हाइट बॉल तो होना चाहिए, है कि नहीं? है, क्योंकि अगर यहां पर दो व्हाइट बॉल ना हो तो आप दो व्हाइट बॉल कहां से ड्रॉ करेंगे? बैग से। सो एटलीस्ट तो दो व्हाइट बॉल तो कम से कम बैग में तो होना चाहिए, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, टू व्हाइट बॉल्स एंड टू नॉन व्हाइट बॉल्स। ठीक है, नॉन व्हाइट बॉल्स। कम से कम तो आपके पास दो व्हाइट बॉल तो होना चाहिए, तभी तो आप दो व्हाइट बॉल बैग से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मिला E1। E2 दूसरा पॉसिबिलिटी है, अब दो से कम तो आप व्हाइट बॉल तो नहीं रख सकते, हाँ उससे ज्यादा व्हाइट बॉल हो सकता है, तो दैट मीन्स 3 व्हाइट बॉल्स भी हो सकता है, 3 व्हाइट बॉल्स एंड क्या, 1 अदर कलर्ड बॉल, अदर कलर्ड बॉल। ये आपका E2 है। E3 क्या बोल रहा है? ऑल आर व्हाइट बॉल्स। 3 व्हाइट बॉल तो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 2 से कम तो हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज यू नीड टू ड्रॉ एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल्स, क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप 2 व्हाइट बॉल से कम तो नहीं ले सकते बैग में। ठीक है, आप अगर कम ले लेंगे तो 2 व्हाइट बॉल कहां से लाएंगे, है कि नहीं? तो 2 व्हाइट बॉल आपका मिनिमम रहना चाहिए बैग में। अब उसके ऊपर जा सकते हैं, 3 व्हाइट बॉल्स हो सकता है, 4 व्हाइट बॉल्स हो सकता है। 4 व्हाइट बॉल मतलब ऑल आर व्हाइट। ठीक है, ऑल आर व्हाइट मिल गया आपको। अब E1, E2, E3 आपको मिल गया। So now the most important thing is what is P1, P of E1, P of E2 और P of E3। ये दोनों आंसर क्या होगा? नाउ ये तीनों में से कोई एक हम लोग को चूज करना है कि नहीं? ठीक है ना, क्योंकि 2 व्हाइट बॉल तो आपको ड्रॉ करना है। वेरी गुड। अब 2 व्हाइट बॉल ड्रॉ करने के लिए जैसे हम लोगों ने पहले बैग चूज किया है ना, E1, E2, E3 बैग चूज किया है, वही यहां पर सेम। यहां पर तो एक ही बैग में 3 पॉसिबिलिटीज आ रहा है, एक ही बैग में 3 पॉसिबिलिटीज। डिफरेंस ये है कि दूसरे क्वेश्चंस में 3 बैग है, तीनों बैग में 3 डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ बॉल्स दिया जाता है। यहां पर एक ही बैग है, एक ही बैग में डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ बॉल्स दिया गया। क्वेश्चन में को ऐसे सजाया गया कि यहां पर बैग एक है, बट पॉसिबल इवेंट्स जो है वो आपका एक से ज्यादा निकल सकता है। यहां पर 3 निकल गया। सो एट ए टाइम आपको एक ही इवेंट चूज करना है कि नहीं? जैसे 3 बैग की तरह पहले आपको बैग चूज करना है, फिर उसके बाद आपको ये व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, दैट मींस ये बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहां पर तीनों इवेंट, दैट मींस ये 1/3 होगा। देखो तो P of E1 मतलब E1 चूज करेंगे तो 1/3 है, 3 टोटल है, उसमें से एक आपको चूज करना है, 1/3। यहां पर भी E2 का भी सेम 1/3 होगा, E3 का भी सेम 1/3 होगा। ठीक है, तीनों तो एक साथ हम लोग डील नहीं कर सकते ना, है? तो तीनों को एक साथ हम लोग डील नहीं कर सकते। एट अ टाइम एक ही इवेंट लेकर हम लोग डील करेंगे, एक ही इवेंट को चूज करेंगे, है कि नहीं? सो इसलिए 3 इवेंट में एक इवेंट आपको चूज करना है, दैट मींस 1/3। अगर आपने E1 चूज किया
तो 1/3, अगर आपने E2 चूज किया तो 1/3, E3 अगर चूज किया तो 1/3। ठीक है। अच्छा, फिर A equals to 2 balls are drawn at random and they are found to be white. That means two white balls are drawn. Two white balls are drawn. Okay. Now P of A by E1, अच्छा E1 क्या है? 2 व्हाइट और 2 नॉन व्हाइट। ए इवेंट क्या है? 2 व्हाइट बॉल्स आपको चूज करना है। तो बैक मतलब ये E1 इवेंट में कितना व्हाइट बॉल है? टोटल 2 व्हाइट बॉल है। अच्छा, टोटल बॉल कितना है? 2 2 4। ओके, टोटल में तो 4 आ जाएगा। कितना व्हाइट बॉल चूज करना है? 2 व्हाइट बॉल्स आर चूजन। ओके, 2 व्हाइट बॉल्स आर चूजन। बैक में कितना व्हाइट बॉल है? 2 ही व्हाइट बॉल है। सो दैट मीन्स 4C2, 2 व्हाइट बॉल आपको चूज करना है। और बैक में फेवरेबल भी क्या आएगा? 2 व्हाइट बॉल आपको चूज करना भी है, 2 व्हाइट बॉल, दैट मीन्स 2C2। है कि नहीं? अब एक से ज्यादा बॉल चूज कर रहे हो, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन तो यूज करना ही पड़ेगा। 1 ball is drawn, then this combination concept मतलब not needed to be used. But here 2 balls are drawn, that means you need to use this combination concept. Okay, 2C2/4, that means 1/4C2 का आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 4/2 into factorial 2, that means 4 into 3 into factorial 2 6 that means 2C2 तो 1 है और ये 6। So P of A by E2, 4C2 तो कॉमन है, 4 में से 2 बॉल ड्रॉ करना है। ठीक है। अब बोलो मतलब इवेंट नंबर 2 में कितना व्हाइट बॉल्स है फेवरेबल में? 3 व्हाइट बॉल्स। चूज आपको कितना व्हाइट बॉल करना है? 2 व्हाइट बॉल करना है, दैट मीन्स 3C2। तो इसका आंसर 6 और 3C2 का आंसर क्या आएगा? 3C2 का आंसर तो 3 आएगा, है 3, दैट मीन्स हाफ। ठीक है। फिर P of A by E3, P of A by E3 क्या आएगा? नीचे तो 4C2 है, वेरी गुड। ऑल आर व्हाइट, 2 व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है और ऑल आर यहां पर व्हाइट, दैट मीन्स आपके पास 4 व्हाइट बॉल है, 4C2। फेवरेबल में भी 4C2, टोटल में भी 4C2, आंसर 1। 4 व्हाइट बॉल है और टोटल बॉल भी बैग में 4 ही है, सो फेवरेबल और टोटल तो सेम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना। सो आपको लास्ट में क्या निकालना है कि आपने जो 2 व्हाइट बॉल ड्रॉ किया है, सो आपको यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर व्हाइट। क्वेश्चन में बोला गया ना, तो ऑल द बॉल्स आर व्हाइट, व्हिच इवेंट हियर? E3। सो P of E3 by A, बस। सो P of E3 into P of A by E3 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3। बस वैल्यू बिठाओ। P of E3 मतलब ये तो सब 1/3 है, 1/3 into A by E3 that means 1, ये 1/3 into A by E1 that means 1/6 plus 1/3 into 1/2 plus 1/3 into 1। अब 1/3 तो ऊपर नीचे कैंसिल ही जाता है, नीचे क्या रहेगा? 1/6 plus 1/2 plus 1, बस एलसीएम करो 1, एलसीएम तो 2 और 6 के एलसीएम तो 6 ही आएगा, 6 1 plus 3 plus 6, बस 6/10 that is 3 और इधर 5, 3/5 is the final answer। 3/5 is the final
आंसर. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A bag contains 3 red and 7 black balls. A bag contains, next question, a bag contains 3 red and 7 black balls. यहां पर भी वही सेम है, बट यहां पर बॉल नंबर दिया गया है. वहां पर इनडायरेक्टली दिया गया था, ऐसा नहीं कि बॉल नंबर नहीं दिया गया था. व्हाइट बॉल का क्वांटिटी तो आपको ने मतलब सोच ही लिया था. A bag contains 3 red and 7 black balls. A bag contains 3 red and 7 black balls. Okay. 2 balls are selected at random. 2 balls are selected at random. ठीक है. 2 balls are selected at random. If the second selected ball happens to be red, if the second selected ball happens to be red, if the second selected ball happens to be red, then find the probability that first one is also red. Then find the probability. तो क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर बनाया जाता है कि एक बैग होने से भी वहां पर ये सब बायस थ्योरम आपका मतलब हो जाता है. थ्योरम यूज करने का रास्ता निकल जाता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट वन इज रेड. सेकेंड बॉल तो रेड है ही, फर्स्ट वाला भी रेड ही होगा. दैट मीन्स अल्टीमेटली 2 balls are drawn, but one by one, not together, one by one consecutively. So here a bag contains 3 red and 7 black balls. 2 balls are selected at random. Okay, 2 बॉल सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें से द सेकेंड सिलेक्टेड बॉल हैपेंस टू बी रेड. दैट मींस सेकेंड बॉल रेड है कि नहीं. And find the probability that the first one is also red. First one is also red. So what will be the E1 and E2 events here? आपको पता है, उसको तो ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं. वहां पर तो लास्ट क्वेश्चन में व्हाइट बॉल का टोटल क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज ले लिया था और वहां से E1, E2, E3 इवेंट हम लोगों ने निकाल लिया था. बट यहाँ पर व्हाट शुड आई डू? If the second selected ball happens to be red, then find the probability that the first one is red. Here, E1 equals to, देखो पूरा क्वेश्चन में देखो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ड्रॉ में रेड, ये कंफर्म है. देखो, if the second selected ball is to be red, that means this second selected ball is red. It is confirmed. Okay. Now you need to find the probability that the first one is also red. That means ये फर्स्ट ड्रॉ में रेड आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन देखो डिपेंड कर रहा है कि नहीं. सो दैट मीन्स ये जो फेवरेबल, दैट मीन्स ये जो पॉसिबल इवेंट्स हम लोग चूज कर रहे हैं वो किसके ऊपर चूज कर रहे हैं? जो मतलब जो आंसर निकालने के लिए बोला जाएगा आपको, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग E1, E2, E3 बनाते हैं, है कि नहीं. ठीक है. तो दैट मीन्स E1, red ball is chosen. Okay, red ball is chosen in first draw. E2 equals to क्या?
रेड बॉल इज नॉट चूजन, रेड बॉल चूज नहीं किया गया, इज नॉट चूजन इन फर्स्ट ड्रॉ, है कि नहीं? A equals to red ball is chosen in second draw. ये फिक्स्ड है, ये कंफर्म है कि नहीं? नाउ P of E1 क्या होगा कि रेड बॉल इज चूजन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉ, दैट मीन्स रेड बॉल कितना है 3, फेवरेबल में 3 आएगा, टोटल कितना है 10, 3/10. सो P of E2 क्या होगा? रेड बॉल इज नॉट चूजन, रेड बॉल इज नॉट चूजन, दैट मीन्स ब्लैक कलर बॉल इज चूजन. रेड बॉल चूज नहीं किया गया, दैट मीन्स कौन सा, 2 ही कलर का तो बॉल है बैग में, है नहीं? तो दैट मीन्स क्या है, ब्लैक बॉल चूज किया गया. ब्लैक बॉल का कितना है 7/10 होगा, है नहीं? फिर अच्छा यहां पर देखो P of A by E1 क्या होगा? P of A by E1, अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि E1 जो है ऑलरेडी हैपेंड, E1 ऑलरेडी ऑकर हो गया है, ठीक है? E1 अगर यहाँ पर ऑलरेडी ऑकर हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर E1 क्या है? रेड बॉल आपने फर्स्ट ड्रॉ में चूज किया, रेड बॉल आपने फर्स्ट ड्रॉ में चूज किया. तो E1 इवेंट, इफ E1 इवेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड, देन ऑलरेडी आपने एक रेड बॉल ड्रॉ कर लिया है कि नहीं? तो यहां पर बैग में कितना टोटल बॉल बचा है? पहले तो 10 था, आपने तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल तो एक बार ड्रॉ कर ही लिया है, ठीक है, और वो बॉल आपने फेंक दिया है, वो विदाउट रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन यहां पर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट. तो दैट मीन्स देखो टोटल सेकंड ड्रॉ के लिए, सेकंड ड्रॉ के लिए आपके पास कितना बॉल बचा है 9. रेड बॉल कितना बचा है? ए इवेंट तो आपका रेड बॉल ड्रॉ करना ही है सेकंड ड्रॉ में, तो दैट मीन्स 2 रेड बॉल बचा है, एक रेड बॉल तो आपने ड्रॉ कर लिया. P of A by E2, दैट मीन्स E2 क्या है कि आपने रेड बॉल ड्रॉ नहीं किया, दूसरा कुछ बॉल ड्रॉ किया, बट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 9 ही हो गया. जो भी कलर का बॉल ड्रॉ करो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो यहाँ पर 9 ही हो जाएगा, ठीक है. और ए इवेंट क्या है? रेड बॉल आपने यहाँ पर दूसरा कलर का बॉल आपने ड्रॉ किया, रेड बॉल ड्रॉ नहीं किया, ब्लैक बॉल ड्रॉ किया है, ठीक है. E2 इवेंट क्या है? आपने ब्लैक बॉल ड्रॉ किया है, रेड बॉल ड्रॉ नहीं किया है. इसका मतलब क्या होता है कि रेड बॉल का क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स 3/9, ये 1/3 होगा. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट इट. ओके, तो आपको निकालना क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट वन इज रेड, फर्स्ट वन इज रेड, दैट मीन्स कौन सा फर्स्ट वन इज रेड, कौन सा इवेंट है E1. सो E1 by A, so P of E1 by A, so P of E1 by A equals to बस P of E1, P of A by E1, और नीचे P of E1, P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. So निकाल लो 3/10 into 2/9 divide by 3/10 into 2/9 plus निकालो आंसर अभी कितना है 7/10 into 1/3. तो यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 3, डिफरेंस 1/15, इधर 1/15 प्लस 7/30, so 1/15 और इधर तो 30 आएगा, so that means इधर 2 प्लस 7, so it means 1/15 into 30/9, so 2/9, 2/9 is the answer. 2/9 is the final answer. Okay, so these are the wise theorem questions, and some questions are also left, and that will be discussed in the next lecture. Okay, because in all these questions much more discussion used to be
done. Okay, without this discussion you can't get the idea what is going on in this question, in this solution. And that's why much more time is required because of this discussion. Okay, it is not the direct solution, because before doing the solution here you need to discuss, you need to get the theme of this question as well. So if you want to get the theme, that means concisely, if you want to understand this question, then you need to discuss. That means you need to be very much attentive on the discussion as well. Okay, so in this lecture just इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइस थ्योरम का और भी 5-6 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाइस थ्योरम को टाटा बाय बाय बोलेंगे. फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लासेस, एंड इफ यू like my video, then please subscribe, like and share my channel. Okay, thank you very much. Bye and Jai Hind.